You're the returning member. So yeah. हमने सुना कि बड़ी लॉयर बन गई आप। कोशिश है आई मीन इस सीज़न में मैं और पुनीत, निहारिका और पुनीत अपनी एक फर्म शुरू कर रहे हैं. बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर के क्योंकि फाइनली शी वांट्स टू कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ हर मेंटोर एंड शी इज़ डूइंग दिस विद हिम एंड एक्साइटिंग न्यू जर्नी, नए केसेस हैं दैट शी इज़ वर्किंग ऑन. सो सुपर एक्साइटेड. ऑफ कोर्स सीज़न 1 को बहुत सारा प्यार मिला है तो उम्मीद यही है कि सीज़न 2 को भी ढेर सारा प्यार मिले. ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ work that we've put in, a lot of love we've put in. So I just hope the audience can see that and appreciate our work. And that's all. Neha, in the series teaser, he told that I am my own boss. So can you explain that phrase? I mean, earlier I was working with Janardhan Jaitley and his firm. So finally she has her own firm with Puneet. So that's why she calls herself her own boss, because she doesn't have to answer to someone else and she can do what she actually believes in, her passion projects, the cases that she believes in. So yeah, I mean, finally getting out of the shadows of her mentor feels great, feeling empowered. Season 1 was like more of suspense and the audience were very thrilling, and so can we see the same scenes, thrilling, suspense and more than that in season 2? I mean, of course, there are new cases this time around. We've got 3 very interesting cases, and of course, there's the Neeraj case that continues and Vartika's case that we continue on to this season. But there are 3 new interesting cases, and it's going to be definitely thrilling for the audience. तनुज जी आप बताइए, काफी डिफरेंट अंदाज में यही अंदाज। हाँ नहीं मैं कैरेक्टर में नहीं आया हूँ आज, बट नो आई मीन मैं बहुत खुश था जब समर खान ने मुझे कॉल किया. मैं उनके साथ दूसरे शो पे भी काम कर रहा हूँ. सो व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार वी आर मेकिंग सीजन 2 ऑफ इलीगल और हम चाहते कि आप इसमें शामिल हो. तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन द फर्स्ट सीजन, आई हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव सीन. और इंटरेस्टिंग सा रोल था, जैसे कि आप आज पोस्टर में देखोगे आई एम द आउटसाइडर, क्योंकि मैं नया एंट्रेंट हूँ. ये सारे लोग इलीगल के दिग्गज कलाकार हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. उसके अलावा मैं और कुछ बता नहीं पाऊंगा, वो तो शो देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे. नहीं आई एम माय लिप्स आर सील्ड, पर मैं इस अंदाज में तो नहीं गया. हाँ जो भी आपके दिल में आप बता सकते हैं। नहीं दिल में तो बहुत कुछ है. नहीं पर इलीगल कुछ भी आप बता सकते हैं। नहीं You should definitely tell them that you're the बताइए कि क्या कुछ joy part of it. Why not? You bring इस बार एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो ज़्यादा बिजी है इस नए लॉ फर्म को स्टार्टअप करने में, उसके लिए फंडिंग अरेंज करने में. तो मेरी जो इन 10 एपिसोड्स में मेरी लाइफ है वो ज़्यादातर इस तरफ फोकस्ड है. लेकिन जैसा नेहा ने कहा कि रेलेवेंट इश्यूज that we read about today, they find themselves in the show in the way of different cases, you know, things that people talk about, whether it's social media or whatever. And that's how you make a show engaging, by just bringing in sort of points of discussion which are being discussed, you know, generally in cities, in towns, and yeah, we hope that it rings some sort of a connect with the audience. Yeah. तो सत्यदीप, मैं इस सीजन में भी देखने मिलेगा कि आप उसी सेम विलन से लड़ेंगे या फिर और न्यू विलन की एंट्री होगी? नहीं, विलन तो मतलब एक कॉमन विलन है जो जनार्दन जेटली था पिछले, मतलब हमारी तरफ से जो हमारा जो एनिमी था. और अब बिकॉज वी रन अ फर्म विच इज अगेंस्ट, यू नो, वी आर ऑन वन साइड ऑफ द केस एंड ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द केस. he's become more political now, so it's not really a villain. I mean, technically a lawyer should be allowed to you know, represent anyone that he wants. So as a lawyer he has the right to do that. But yeah, this is just a question of perspective, and we look at a situation one way and he looks at it the other way. So yeah. So Tanuj, you are the main entry. Can you explain your character towards Neha or whoever? Yeah, so firstly it was very exciting for me to be the new entrant over here, because आज तक मैंने जितने भी shows किए हैं web पे, you know, I've been there for season 1 and then I welcome other people for the subsequent season. So this time it was like, you know, बाजी पलट गई थी, and it was really interesting for me. And also because I'm one of the few guys who does not play a lawyer on the show, so I was very relieved that I did not have to memorize any of that legal jargon, क्योंकि वो मेरे ज़्यादा समझ में आती नहीं, bouncer जाता है. And yeah, he's this suave, rich, charming guy who's just like shifted next door and is just there to shifted into penthouse. Shifted into the penthouse, yes, of course, a very important
piece of my character. Yeah. And yeah, But I think your character does bring a lot of joy and fun to the show, because otherwise it's very on camera, serious. off camera. both. We'll go with both. Yeah, because it's a very legal show, so we needed that breather, and, Yeah. you know, that light, Comic frothy relief. romance. Yeah, I'm the laughs. Yes, I the tried. laughs and romance and all of that. So yeah, welcome on board, Tanuj. Thank you. लेकिन तनु जी आजकल रॉयल के पास बहुत सारा काम आ रहा है हाँ जी. सो अच्छा एक आखिरी सवाल कि ऐसा कोई काम जो आप लोग इलीगल करते हैं नहीं मतलब अगर कर भी रहे होते तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है 50 कैमरास के सामने बोलने के लिए. नहीं सर, हम कुछ इलीगल नहीं करते. I actually have a very boring life, so I like to, I like to live my life by the books, and that's how I've always been. So, illegal show का ही नाम है, बाकी सब कुछ legal है हमारे show में. तनु जी बताएंगे क्या तनु जी क्या बताएंगे? शक्ल से कुछ लगता है कि कुछ जो मैं शक्ल से लगता वो मैं नहीं हूँ. The one thing that we want to tell the audience is thank you for giving all the love that you've given to season 1, and season 2 is coming out now on the 25th of November, so it's right here. Please tune in to Woot Select and watch the show and tell us how you like it. थैंक यू गाइस. लीगल 2 का एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि सीज़न 2 है और सीज़न 2 अक्सर बजट ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं. वी हैव मोर कैरेक्टर्स ऑल्सो लाइक तनुज विरवानी, सोनाली सहगल. वी हैव मतलब कास्ट बड़ी हो गई, शो बड़ा हो गया, लुक एंड फील भी बड़ा हो चुका है, विच यू कैन सी इन द ट्रेलर. तो आई थिंक हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. वी आर रिटर्निंग एज आर कैरेक्टर्स एंड ये अब मेरा तीसरा शो है पारुल गुलाटी जी के साथ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अभी देखो दर्शक डिसाइड करेंगे. He's thinking which is the. Hey, can we have some silence? Very hard to hear him. अगर नहीं तो आप लोग बात कर लो, फिर हम लोग कर लेंगे. ऐसे डिसाइड कर लो क्या करना है. हाँ जी पर सीजन 2 में आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्या कुछ डिफरेंट अंदाज है आप So season 1 में भी आप देखते हैं देविका, my character's name is Devika. So she's married to Akshay's character. But अभी कैसे she's just taking the step to get into the family's business and in his life and making that known to him कि मैं तुम्हारी life में भी हूँ और तुम्हारे business में भी हूँ, and this is how it's going to be. They don't have necessarily that husband-wife वाला love, but you get to see a new side to them when they are together. I mean, it's an interesting dynamic because it's one of those things जो शादी एक्चुअली किस कारण हुई है, मतलब वो पता चलता है आपको कि धंधे के लिए हुई है कि एक्चुअल प्यार है दोनों के बीच. So I think it's a very interesting dynamic for powerful rich people. तो हम ऐसा माने कि बेस्ट हस्बैंड बन चुके हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली आई वुड से कि मैं बहुत गंदा हस्बैंड हूँ, क्योंकि नेहा के साथ भी रिश्ते हैं, पारुल के कैरेक्टर के साथ भी रिश्ते हैं. तो इनफैक्ट ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, बट वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है लाइफ में. उसकी गलती भी नहीं है आई वुड से. पर्सनली मेरे किरदार के बारे में अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिज फादर पीयूष मिश्रा हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन हिज लाइफ, एंड उस कारण वो उलझा हुआ है विद बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ. So as you said कि आपका नेहा के साथ भी संबंध है, वाइफ के साथ भी संबंध है, तो सीजन 2 में अभी ये देखने मिल सकता है कि आप उनके साथ अगेंस्ट भी हैं लेकिन साथ में भी हैं. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देर इज़ अ गर्लफ्रेंड एट वर्क, निहारिका सिंह, नेहा's character, and a wife at home, Parul's character, Devika. Definitely we have tried in this season to work that. Now, who he ends up with and who ends up together, वो तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो मैं बता नहीं सकता. As you told, your character is more bit of confusing, तो at the end आप सुधरते हैं या फिर same? आई थिंक बाय द एंड कुछ चीज़ें सुधरती हैं. फॉर एग्जांपल बिजनेस के जो भी ताल्लुक है मेरे, आई थिंक वो चीज़ें सुधरती हैं, बट पर्सनल लाइफ ही स्टिल काइंड ऑफ मेस्ड अप. मे बी, आई मीन दैट्स समथिंग यू हैव टू सी व्हाट्स अप, बट ही इज स्टिल कंफ्यूज्ड जनरली. लास्ट सीजन कौन तो बहुत अच्छा गया, सीजन 2 से क्या एक्सपेक्टेशन? यार जितने भी सीजन 1 के व्यूअर्स थे, अगर उनको अच्छा लगा तो आई थिंक आवर वर्क इज़ डन. आई होप दे वॉच इट, आई होप दे लाइक इट, and that we get new fans of the show. Because we've worked very hard यार. ये बहुत ही मतलब सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन ये शो थोड़ा मतलब इतने सारे किरदार हैं, इतना सारा लीगल जार्गन है, इतने सारे ट्रैक्स चल रहे हैं, उनको सही रखना. आई मीन दैट्स व्हाट यू नो द प्रोडक्शन टीम, Viacom, our director, producer, all these people are there for that. But I hope that we've put together something that entertains the audience. मेरा बहुत सेम सवाल
बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ इलीगल नहीं करता हूँ। मैं बहुत अच्छा देश का नागरिक हूँ और मैं ना कभी करूँगा। पारुल, नहीं, मैं कुछ इलीगल करती नहीं हूँ, पर अगर मुझे कुछ करना हो, व्हेन आई शूट विद अक्षय, वो इरिटेट कर देते हैं, सो आई जस्ट वांट टू, कभी बहुत अनॉय करता है अक्षय, तो दैट्स ऑल। you know she just said I was so cute, now she's telling me I'm like this, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है क्यूट, यार। बट आई वांट टू किल हिम समटाइम। देखो मेरा किरदार भी कंफ्यूज और मैं भी कंफ्यूज, क्या कर रहे हो पारुल तुम? थैंक यू। थैंक यू।